मैम मैथ्स लेक्चर कितने बजे से है? ट्वेल्व 12:30 मैथ्स लेक्चर 12:30 से स्टार्ट होगा। ओके मैम। Settings annotation is this one. Okay. Yes. So सर आपने थर्ड लास्ट मतलब सेकंड लाइन में क्या लिखा है? yes, coming back to this point, I think मैं फिर से करूँ, ये तुमने पढ़ा है ना 10th स्टैंडर्ड में 90 माइनस थीटा। तो वो नहीं एग्जांपल में एग्जाम्पल में आता हूँ, मैं भी आता हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सबने पढ़ा है ना, बिकॉज few people joined just now. Sin 90 minus theta is cos theta, so cos 90 minus theta is back to sin theta. Tan 90 minus theta is cot theta, so cot 90 minus theta is tan theta, and same for second cosec. So ये सबको ऑलरेडी पता था, ये शायद ना पता हो या फिर इमेजिन करते हो कि these formulas are correct for acute angles only. So I have told you that this formula is good for any theta. For theta belongs to R, it is correct. तो मैंने क्या किया, मैंने I just plug in the value of theta as 120, है ना। अभी मैंने इसका रीजन नहीं बताया, but if you take theta equals to 120 also, ये रिलेशन करेक्ट होगा। दैट मींस sin 90 minus 120, देखो मैंने थीटा को 120 रखा है, इज सेम एज cos 120। अब मैंने सेकंड लाइन में क्या किया, 90 और 120 को सब्ट्रैक्ट किया एंड इट कम्स आउट टू बी -30। सो आई एम ट्राइंग टू से कि sin -30 और cos 120 दोनों की वैल्यूज इक्वल है, ठीक है। और अभी इस चीज का तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, टेक इट एज एन एग्जांपल। हम आगे चलते हैं। अब अलाइड एंगल फॉर्मूले जो तुमने नहीं पढ़े हैं, समथिंग न्यू फॉर यू, है ना, कॉन्सेंट्रेट, इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड इज माइनस थीटा, जस्ट लाइक प्रीवियस पॉइंट 90 माइनस थीटा, इट इज ओनली माइनस थीटा एंड एवरीबडी नोज व्हाट इज माइनस थीटा। और चलो एक बार देखते हैं माइनस थीटा क्या चीज है। Obviously if I call this angle theta, there is an opposite side, there is an adjacent side, hypotenuse, और जो मैंने अभी डायग्राम बनाया एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। हमने ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इफ एंगल इज इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। तो व्हाट इज माइनस थीटा? एंगल विद सेम मैग्नीट्यूड बट गोइंग टुवर्ड्स this clockwise direction, है ना। तो this angle is now minus theta. This angle is minus theta, correct? I told you this is a convention, hypotenuse is always positive, but now if you look at this triangle, if this is O, this should be considered as minus O, and the reason is because we are going towards negative y-axis, here we are going towards positive y-axis. So opposite side with same magnitude, just using sign convention, I can say that in this triangle, call this point B dash, in triangle OAB dash, the opposite side should be minus O.
And what about the adjacent side? It is common. The adjacent side is positive, right? Now, if I ask you what is sine of minus theta, first, what is sine of minus theta? Wait, chalo, theek hai. Sine of minus theta. So, what is sine of minus theta? You can see in this triangle, sine minus theta is minus O by H, minus of opposite side upon hypotenuse. But you know, opposite upon hypotenuse is theta, sine theta. So, yahan se there is a conventional proof that sine minus theta should be equal to minus sine theta. I'm again quoting it as a convention. There is no fact in this. हमने convention लिया है, उसकी वजह से minus sign बाहर आ रहा है. So sine minus theta is same as minus sine theta. And if this is true, back to our example. ये देखो यहाँ पर, जहाँ पे मैंने theta को 120 plug in किया था, sine 90 minus 120 is cos 120, and cos 120 is same as sine minus 30. And now you know that sine minus theta is same as minus sine theta. So tell me, इसको हम क्या लिख सकते हैं? This is same as theta. yes, it is minus sine 30, that is minus half. So now you have the value of cos 120 as well. Cos 120 degrees is actually minus half. और देखो negative sign आया, because if you see 120 lies in second quadrant, और second quadrant में केवल sign positive होता है, cos negative होता है. So anyways answer negative आना ही था, answer negative आया. So this is the importance of allied angle formulas. Now you can find trigonometric ratios of all angles. You are not limited to acute angles only. You can find trigonometric ratios of obtuse angles, angles in third or fourth Please quadrant. can I explain again? Okay, which part? Sine minus theta? Yes. Okay. So take this triangle OAB, angle theta is positive because the rotation is in anti-clockwise direction. So OAB. In this triangle, I'm calling this side AB as opposite side, opposite to theta. Fine. इसके बाद take adjacent side. OA is the adjacent side. OA is the सर adjacent डाउट side. है हाँ बेटा बताओ. सर, आपने बोला अपोजिट और हाइपोटेन्यूज दोनों नेगेटिव होंगे ना? नहीं मैंने बोला कि hypotenuse there is a convention कि hypotenuse is always positive because hypotenuse का जो formula है if you use Pythagoras, root over a square plus b square is always considered to be positive. तो ये हमेशा positive रहेगा. It's always positive. हाँ ठीक है सर. Only opposite side gets negative in this diagram. OAB dash, opposite side gets negative. Reason is AB dash, you can see, is in negative y-axis direction, and that's why ये अगर O है तो ये देखो ये minus से हो गया और इसकी वजह से minus sin theta हो तो गया. हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव क्यों होता है? Again ये सब convention, मैंने कहा ना ये कोई fact नहीं है. ऐसा assume किया था because हम कह सकते हैं कि हम positive x-axis direction में हैं, minus हम negative x-axis direction में हैं, similarly positive y-axis और negative y-axis. But if you are moving the direction of OB, तो ना ही तुम positive x-axis बोल सकते हो, ना ही negative y-axis बोल सकते हो. So it is always considered to be positive. Its length, it is always positive. ऐसा माना जाता है. ठीक है? All right. So देखो ये okay, somebody is there. हाँ. So ये सभी conventions हैं. This is an international convention. We have to follow. है ना? We cannot go rogue कि नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे भाई. हम अपना convention खुद बनाएंगे. First quadrant में सब negative होते हैं. तो मैं कह रहा हूँ कि तुम गलत नहीं हो. तुम अपना convention बनाओ. चलो ठीक है. Based on some logic, your convention may be good. But हमको follow वही करना पड़ेगा जो international mathematics community करती है ना? Unfortunately. So ये सब conventions हैं, इसको बस तुम्हें रटना है. मैं थोड़ा logic इसलिए दे रहा हूँ कि अगर तुम logic से support लोगे तो चीजों को पूरा रटना ही पड़ेगा. So I could have said कि sin minus theta is minus sin theta, always रट लो उसको because sin minus theta minus sin theta होता है. It's just a convention. But I am giving you follow करना पड़ता है. मतलब जो international मैथ्स वाली community होती है उसको. अरे तो क्या follow करोगे बताओ? सर फिर हम खुद से भी तो कुछ कर सकते हैं ना. नहीं मैं कहा यहाँ पे कोई डेरिवेशन जैसी चीज नहीं है ना. यहाँ कोई फैक्ट नहीं है. इट इज जस्ट भाई जैसे इंडिया में रोड पे लेफ्ट में ड्राइव करना चाहिए, लेफ्ट में वॉक करना चाहिए. अब ये कन्वेंशन है, हमको फॉलो करना पड़ेगा ना. मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी कंट्रीज यही फॉलो करती हैं. अब तुमको नहीं मैं लेफ्ट या राइट चलाऊंगा तो चलाओ, देखो चलान कट जाएगा और क्या करोगे, है कि नहीं? तो वही प्रॉब्लम्स है.
तो प्रॉब्लम यही है कि जो कन्वेंशन उसको फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है कि अब किसी एग्जाम बैठे और तुम्हारा रिजल्ट कुछ उल्टा आ गया, फिर तुम ये नहीं क्लेम कर सकते ना, नहीं इट इज जस्ट अ कन्वेंशन, मैंने तो अपना कन्वेंशन खुद बनाया है। तो करना पड़ता है ना कुछ चीजें, है ना, जिससे हाँ सर। जिससे सभी लोगों के आंसर्स अलाइंड हो, सभी लोग कन्वर्ज करें एक आंसर की तरफ, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही आए, इसलिए कन्वेंशन बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो साइन माइनस थीटा के बाद लेट्स डिस्कस अबाउट कॉस माइनस थीटा। व्हाट इज कॉस माइनस थीटा? Cos theta. cos theta cos है। theta. theta. And it is apparently same as cos theta because adjacent side is not changing. So cos minus theta is cos theta. And third result, obviously divide these two. So tan minus theta will be minus tan theta. है ना? तो देखो अगर थीटा एक्यूट होता है और माइनस थीटा पे हम पहुंचते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यू कैन सी कि हमारा कन्वेंशन उस पार्ट को फॉलो कर रहा है व्हेन वी सेड दैट इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos and sec should be positive. You can see कि यहाँ पे जो रिजल्ट आया उसमें माइनस साइन साइन के साथ है, माइनस साइन tan के साथ है, बट cos में वो माइनस साइन नहीं है ना। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे जो कन्वेंशंस है वो लॉजिकली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाटएवर आई एम सेइंग, कोऑर्डिनेट का जो कन्वेंशन है या फिर जो एंगल का कन्वेंशन है वो सब कुछ सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये माइनस थीटा के लिए कन्वेंशन है। रेसिप्रोकल्स करोगे तो एक बार फिर देखो sec ऑफ माइनस थीटा प्लस आएगा, cot और cosec में एक नेगेटिव साइन आएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना, इसको मैं शेयर कर दूंगा, देख लेना। ओके, अब माइनस, अब दो रिजल्ट्स for all values of theta है। It is again true for all values of theta wherever they are defined, it is true always, है ना। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट इज 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा और लेट्स से पाई बाई 2 प्लस थीटा। यानी अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या वैल्यू होनी चाहिए साइन 90 डिग्रीज प्लस थीटा की। cos We know theta. about Cos theta. ओके, पढ़ लिया तुम लोगों ने, रट लिया। हाँ, कैसे किया, कैसे आया cos थीटा? याद किया। याद सर क्या हुआ है? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करके उसका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना सकते हैं। 90 का कोएफिशिएंट और जो तुम बनाओगे ना उसमें एक प्रॉब्लम ये रहेगी, अगर हम चलो बनाते हैं 90 प्लस थीटा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, राइट। यू आर सेइंग दिस इज 90 प्लस थीटा, अज्यूमिंग थीटा इज एक्यूट। एक बार फिर तो ये 90 प्लस थीटा हो गया और यहाँ पर हम आ गए। हाँ बेटा, बता रहा था कि जो है हमने ये बना दिया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बट द प्रॉब्लम इज दिस 90 प्लस थीटा इज नॉट एन इंटरनल एंगल फॉर दिस ट्रायंगल। ये मेरी प्रॉब्लम है। मतलब जब मैं बोलूंगा sin 90 plus theta, how can I say sin 90 plus theta? Because 90 plus theta is not an angle of this triangle. So कैसे करें उसको proof? How to Sir, find वो sin 90? Sir, we second will make quadrant another में triangle. second quadrant में 180 डिग्रीज तक रहता है ना, तो 90 से ज्यादा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 तक रहता है, सेकंड में उससे ज्यादा रहता है। और तो वो साइन का cos होता है, वो तो याद ही किया था। फिर क्वाड्रेंट कैसे याद रखा था? प्लस सर हम लोग को फॉर्मूला भी डाल सकते हैं ना, sin a plus b is equal to sin a cos b plus सर एक्सटीरियर एंगल फार्मूला। सर एक्सटीरियर एंगल फार्मूला तो यही होता है 90 और थीटा, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल फिर थीटा हो जाएगा। एंगल ए बी और थीटा हो जाएगा सर। करेक्ट, ये थीटा हो और फिर जाएगा। बाद sin a plus b लगा सकते हैं। अरे तो फिर sin a plus b लगा ही रहे हो तो उसी को जरूरत ही नहीं है। हाँ, तुमने कहा था ट्रायंगल बनाएंगे। प्रतीक्षा ट्रायंगल बना लिया, अभी सर, बताओ। सर एक और projection ट्रायंगल के फर्स्ट साथ क्वाड्रेंट बोल पे रही बना थी। सकते हैं। प्रोजेक्शन के साथ बोल रहे थे। हेलो, जी चलो सर। ठीक है, ओके ठीक है। तुम जो कह रहे हो गलत नहीं है, बट लुक आई हैव अ बेटर अप्रोच। क्योंकि हमारे पास ये जो दो रिजल्ट्स आ गए हैं, वी हैव माइनस थीटा एंड वी हैव 90 माइनस थीटा। नाउ यूजिंग दीज टू I can derive my result for 90 plus theta. See how? It's very easy. 90 plus theta को लिख दिया हमने, 90 minus theta. I can write this. Minus of minus is plus. And चलो इस minus theta को थोड़ी देर के लिए मैं alpha assume कर लूं जिसमें confusion ना हो. So this is sin 90 minus alpha. And what is sin 90 minus alpha? Sin 90 minus alpha is, ये तुमको पता है ना for sure, first result cos alpha. This is cos alpha.
And what is cos alpha? Now again, let's substitute alpha is minus theta. जैसा हमने assume किया था, minus theta is alpha. And what is cos minus theta? Coming back to second result, cos minus theta is cos theta. So you just have derived the result for 90 plus theta हो गया, आ गया cos theta. तो हमने क्या किया, हमने जो पुराने दो रिजल्ट्स निकाले थे 90 माइनस थीटा और माइनस थीटा, उनका यूज करके हमने 90 प्लस थीटा के लिए रिजल्ट डिराइव कर लिया. सो रिमेंबर, और ये एग्जाम में डिराइव करने का टाइम नहीं होगा, तो तुम्हें इसको याद करना है ना. अभी मैं इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, याद हो जाएगा बहुत इजीली. फिलहाल साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा याद करना है, ठीक है. सिमिलरली चलो अब तुम लोग अपने आप ट्राई करो और सेम मेथड से ट्राई टू फाइंड cos 90 plus theta. चलो डू इट. प्लस माइनस cos थीटा होना चाहिए ना सर? कैसे बेटा प्लस माइनस क्यों आएगा बताओ? सर क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि अगर 90 प्लस थीटा मतलब ऐसे अगर थीटा सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो cos पॉजिटिव कैसे हो सकता है? करेक्ट करेक्ट. तो प्लस साइन का मतलब पॉजिटिव नहीं है. लेट्स से मैंने कहा कि माय आंसर इज x, अब तुम कहोगे प्लस x क्यों, माइनस x क्यों? बिकॉज़ जो x है वो नेगेटिव वैल्यू भी तो हो सकती है. सपोज आई एम सेइंग sin 90 plus theta is cos theta. सर माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा. यस आंसर इज करेक्ट. एंड आंसर तो योर क्वेश्चन, cos थीटा के आगे पॉजिटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू पॉजिटिव रहेगी. एज यू सेड थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो cos थीटा खुद ही नेगेटिव हो जाएगा. सर 90 प्लस थीटा तो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, तो हमेशा काश वो हमेशा लगा नहीं, के हमेशा नहीं. थीटा जब थीटा एक्यूट होगा तब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा. अगर थीटा एक्यूट नहीं हुआ तो फिर थीटा, मान लो थीटा जैसे नेगेटिव हो गया, मान लो थीटा -30 है. थीटा अगर एक्यूट एंगल है बट नेगेटिव है तो 90 प्लस थीटा भी देखो एक्यूट एंगल हो जाएगा. उस केस में देखो cos थीटा पॉजिटिव देगा, बिकॉज़ थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ही पॉजिटिव रहता है cos. अभी ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. फिलहाल देखो प्रूफ, ये तुम्हें प्रूफ समझ में आया ना. हमने 90 प्लस थीटा को 90 माइनस थीटा किया, फिर 90 माइनस अल्फा लिखा और उसके बाद जो रिजल्ट निकला है, और तुमने 90 माइनस थीटा सभी ने अपने आप कर लिया. cos का रिजल्ट जो था सभी का आ गया ना. cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन, सभी का आ गया. यस. ओके चलो फिर नेक्स्ट पे आते हैं और अब ट्राई करते हैं साइन 180 माइनस थीटा फाइंड करने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई टू फाइंड साइन 180 माइनस थीटा. Listen, if theta is acute, only then you can assume that 180 minus theta is in second quadrant. But फिलहाल के लिए visualize करने के लिए assume that theta is acute. Assume कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. But जो result तुम्हें derive करना है, अब previous results का use करके इस result को derive करो. Once again, I am telling you, चलो मैं बता देता हूँ. Sin theta. Yes, answer is sin theta. And to prove this, use this. देखो ना, मैंने 180 को ब्रेक कर लिया 90 प्लस 90 माइनस थीटा में. एंड वंस अगेन आई एम assuming 90 minus theta as alpha. So see, it is sin 90 degrees plus alpha. And what is sin 90 degrees plus alpha? अभी हमने देखो रिजल्ट निकाला है. Result is cos theta. So what do I get? Cos alpha. Now alpha is 90 minus theta. It's sin theta. Yes. sin theta. It is back to sin theta. तो भाई sin 180 degrees minus theta is back to sin theta. ये same values होती हैं. And again theta can be anything. Theta can be 30, theta can be 60. सर तो फिर cos 180 minus theta में cos minus cos theta होगा ना? Yes, yes. Cos 180 minus theta तुम फाइन. चलो ये तो साइन और कोसेक में ही प्लस रहेगा शायद. करेक्ट. अभी ये याद करने का तरीका है, रटने का तरीका है, हम अभी आ रहे हैं उस पर. बट cos 180 minus theta को डिराइव करो using the same trick what I have done. Minus cos theta. सभी ने ट्राई किया. और देखो इन दोनों को हम डिवाइड कर दें. चलो tan लिख लेते हैं. What is tan 180 minus theta? So tan 180 minus theta is also minus tan sin upon minus cos. ठीक है, गुड. So 180 minus theta पे हम पहुंच चुके हैं. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. फिर नेक्स्ट है 180
प्लस थीटा और पाई प्लस थीटा। सो अब इस बार हमको निकालना है भाई साइन 180 प्लस थीटा। टेल मी हाउ टू गो Minus अहेड। sin theta. Minus sin theta. माइनस साइन थीटा Minus sin theta. Minus sin theta. डिराइव कैसे, तेरा माइनस डेरिवेशन पूछ रहा है सर, डिराइव कैसे? याद सर ऊपर करके वाला तो यूज करेंगे। ऊपर वाला क्या यूज करें, मतलब क्या करूं बताओ? 90 प्लस 90 से बेटर हाँ, sir. कुछ कर, उससे बेटर क्या है 180 माइनस, बिकॉज ये रिजल्ट मेरे पास अच्छा आ मैंने चुका है यही ना। किया सर, यही किया। हाँ गुड। माइनस थीटा को अल्फा अज्यूम करो। नाउ यू हैव साइन 180 माइनस अल्फा एंड साइन 180 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, साइन थीटा होता है ना। सो दिस इज बैक टू साइन अल्फा। अब अल्फा गया था माइनस थीटा, सो दिस इज साइन ऑफ माइनस थीटा एंड व्हाट इज साइन माइनस थीटा, इट इज माइनस साइन। तो ये विजुअलाइज करो 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा में डिफरेंस क्या है। थीटा का तो डिफरेंस है, एक जगह थीटा पॉजिटिव है और एक जगह माइनस थीटा हमने यूज कर लिया, और माइनस थीटा के लिए ऑब्वियसली साइन के साथ एक नेगेटिव साइन बाहर आता है। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू गो फॉर cos 180 प्लस थीटा एंड नाउ यू कैन इमेजिन, लिखने की जरूरत नहीं है, cos 180 प्लस थीटा में क्या होगा। सेम स्टेप, सब कुछ सेम रहेगा। द ओनली डिफरेंस वुड बी जब तुम पहुंचोगे cos माइनस थीटा पे, लेकिन ध्यान रखना कि 180 माइनस अल्फा में भी एक नेगेटिव साइन बाहर आएगा, राइट। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, बट माइनस थीटा में cos पॉजिटिव ही रहता है, तो यहाँ पर भी एक माइनस साइन बाहर आएगा। ये अपने आप करके देखना है इसको, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली। cos 180 प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो सर हम लोग हमेशा थीटा को पॉजिटिव अज्यूम करके ये कास्ट रूल यूज कर सकते हैं नेगेटिव या यस पॉजिटिव के लिए। यस थीटा को एक्यूट अज्यूम करके हाँ तुम ऐसा वैसे ही करना है। एंड डिवाइड दीज टू। सो अगेन नो सरप्राइजेस, अगर हम डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल आएगा, होगा एंड प्लस आ दिस जाएगा। इज प्लस tan थीटा। 180 plus theta is obviously, if theta is acute, it is in third quadrant. If it is in third quadrant, then tan must be positive. इसलिए यहाँ पर ये प्लस साइन है, बट ये प्लस साइन का मतलब ये नहीं कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये पॉजिटिव तभी रहेगी जब थीटा एक्यूट होगा। अगर ये थीटा कोई किसी और क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो फिर ये नेगेटिव भी हो सकता है। आंसर tan थीटा है। tan 180 प्लस थीटा इज tan थीटा। अभी आएंगे हम एग्जांपल्स पे आएंगे तो अपने आप तुम्हें दिखेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। सिक्स्थ पॉइंट होगा, लेट्स गो फॉर 270 माइनस थीटा आल्सो। फाइंड मी साइन 270 माइनस थीटा। चलो फाइंड दिस साइन 270 माइनस थीटा। माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा इज करेक्ट। यस, आई एम लीविंग इट अप टू यू। अब तुम इसको प्रूव कर सकते हो। हिंट ये है कि 270 को ब्रेक करो, 180 प्लस 90 and you can prove it. Sin 270 minus theta is minus cos theta. Good. And at the same time, if you find cos 270 minus theta, this will माइनस be साइन थीटा। minus sin theta. And again, you can analyze ये minus sign क्यों आ रहे हैं? Because if theta is acute, 270 minus theta goes to third quadrant, और third quadrant में cos sin दोनों negative होते हैं, but tan 270 minus theta, divide these two and you will get plus cot theta, है ना। तो 270 minus theta में sin and cos minus sin and tan is positive, and so last एक और कर लेते हैं। 270 plus theta। 270 plus theta. What is sin 270 plus theta? माइनस cos थीटा। cos थीटा cos cos थीटा प्लस cos थीटा। अब डिसाइड करो भाई यहाँ पर माइनस cos थीटा। with दो माइनस नंबर cos दिए थे। थीटा, माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा श्योर। प्लस cos थीटा। देखो आई थिंक जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा वो लोग cos को रेफर कर रहे हैं, बट रिमेंबर यस Sin वी है आर टेकिंग साइन ऑफ दिस एंगल। वही साइन ऑफ एन एंगल इफ थीटा इज एक्यूट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन तो उसका नेगेटिव होगा ना भाई। ये माइनस साइन cos के लिए नहीं है, माइनस साइन साइन के लिए है। हाँ, अगर तुम लोगे cos 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा,
तो ये प्लस आएगा, दिस विल बी प्लस Plus sin साइन theta. थीटा एंड डिवाइडिंग दिस टू ऑब्वियसली tan 270 plus theta, this will be minus cot theta. ठीक है, एट लास्ट, हालांकि चलो ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट अबाउट 360 माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा. इसके पहले कि हम इसको डिराइव करने की कोशिश करें, डिराइव नहीं करेंगे हम. हाँ, हम एक बार देखते हैं कि ये है क्या. व्हाट इज 360 माइनस थीटा. 360 माइनस थीटा क्या है? एंगल तक पहुंचने की कोशिश करें. यस, माइनस थीटा. So 360 means full rotation, one full rotation, and minus theta, assuming once more that theta is acute, minus theta का मतलब देखो, adding a negative angle मतलब हम कुछ यहाँ पहुंच गए. So what is 360 minus theta? 360 minus theta should be similar to minus theta, because अगर हमने एक full rotation किया है, so we are back to square one. We are back to from where we have started. So 360 minus theta should be equivalent to minus theta. 360 minus theta के results वही होने चाहिए जो minus theta के results थे. So हम ये कह रहे हैं कि अगर हमसे पूछा गया कि भाई sin 360 minus theta क्या होना चाहिए, so answer should be yes, answer should be Minus same sin as theta. sin minus theta, which is minus sin theta. Similarly, cos 360 minus theta should be same as cos minus theta, and this should Cos theta. Cos theta. be cos theta. Or dividing these two, tan 360 minus theta is also tan minus theta. This should be सर तो फिर 360 प्लस थीटा में तो सब Minus प्लस होगा ना. अगर obviously मैं उसी पे आ रहा हूँ अभी. And consider this as the last point. 360 म्यूट कर लो वरना वीडियो नहीं आएगा. So 360 plus theta or 2 pi plus theta. Once again, देखो हम इसको फिर से देखते हैं कि 360 plus theta क्या चीज है. 360 is थीटा ही हो गया one, ना. yes, one full rotation, and adding theta to it का मतलब हम कहाँ पहुंचे, इवेंचुअली हम थीटा पे ही पहुंचे. So all positive. quadrant में पहुंचे. Plus theta. All positive होगा. Yes, all positive. You can simply say, अब लिखने की जरूरत नहीं है, 360 plus theta is similar to theta. So in short हम लिख देते हैं कि भाई any trigonometric ratio of 2 pi plus theta or 360 plus theta will be same as the trigonometric ratio of theta, be it any angle, be it sin, cos, tan, कुछ भी हो. अब यहाँ पे कोई change नहीं आने वाला है. And now let's generalize this. Generalize this means कि भाई ये जरूरी नहीं है कि हम एक रोटेशन ले रहे हो ना. सपोज मैं 2 रोटेशंस ले लिया. 2 रोटेशंस का मतलब क्या हुआ भाई, मतलब हो गया 720 डिग्रीज या फिर 4 पाई. 4 पाई प्लस थीटा इज आल्सो सिमिलर टू थीटा. फर्स्ट में आ रहा है वो भी. हाँ. राइट, अगर थीटा एक्यूट है तो नंबर ऑफ रोटेशंस कितने भी हो, इफ आई एम एडिंग फाइनली थीटा टू इट, it should be equivalent to theta. So a generalization to this will be that 2n pi plus theta. 2n pi का मतलब क्या हुआ? 2n pi means what? 2n pi का मतलब a multiple of 2 pi, a multiple of 360. 360 means one rotation. A multiple of 360 मतलब या n times 2 pi मतलब n rotations. So after n rotations you are back to 0 and adding theta to it. So 2n pi plus theta should be same as theta. You know? It is true for every integer n. And again I'm not saying natural numbers. See, I'm saying any integer. यानी negative भी ले जाओगे. For example -2 pi. -2 pi का मतलब भी तो एक rotation हो गया. बस वो rotation भी clockwise हो गया. Fine. तो जो भी तुम rotation करो, anti clockwise करो या फिर clockwise करो, if you are back to 0 and then you are adding theta, it should be equivalent to theta. In short, I can say that any trigonometric ratio of
2n pi plus theta should be the trigonometric ratio of theta. और अगर किसी को ये ग्रास्प करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही हो तो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुरंत एक एग्जांपल. जैसे मान लो हमको निकालना है tan 390 degrees. Tan 390 degrees. Now 390 degrees is a big angle. 390 degrees तुम्हारे 360 तक है ही नहीं. तो अगर हम इसको ब्रेक करें, it is tan 360. Yes, tan 360 plus 30. So this 360 has no meaning now because after one complete rotation, we are back to 30. So tan 390 should be same as tan 30, and tan 30 हमको पता है, answer is 1/√3. ठीक है, तो ये है हमारे अलाइड एंगल फॉर्मूले. अलाइड एंगल फॉर्मूले याद करने के लिए ना अब हम जो देखने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रटने का इसको तरीका क्या होना चाहिए. हम एक बार फिर से चलो रिवाइज करते हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा और तुम ऑब्जर्व करो कि तुमने क्या क्या देखा. 90 माइनस थीटा में क्या हुआ. 90 माइनस थीटा में पहली बात तो सारे आंसर्स पॉजिटिव आए. पॉजिटिव आए मतलब बाहर माइनस साइन नहीं है. तो उसका रीजन ये था कि अगर थीटा एक्यूट होता है तो 90 माइनस थीटा भी एक्यूट होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं तो माइनस साइन बाहर आ नहीं सकता. दूसरा ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए कि साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ, कॉस साइन में कन्वर्ट हुआ, टैन कॉट में हुआ, कॉट टैन में हुआ, और सेक कॉसेक में होगा, कॉसेक सेक में होगा. माइनस थीटा में क्या हुआ. माइनस थीटा में पहली बात तो कॉस पॉजिटिव रहा बिकॉज माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आता है तो कॉस पॉजिटिव रहेगा. और एक और चेंज है कि साइन अब कॉस में कन्वर्ट नहीं हुआ. साइन साइन ही रहा, कॉस कॉस ही रहा, टैन टैन ही रहा, कॉट भी कॉट रहेगा, है ना. तो साइन कन्वेंशन में साइन बता रहा है बट ये चेंज है. 90 माइनस थीटा में साइन कॉस बन गया था और माइनस थीटा में साइन साइन ही रहा था. नेक्स्ट देखते हैं 90 प्लस थीटा में क्या हुआ. 90 प्लस थीटा में भी चलो साइन कन्वेंशन को पता ही है बट ये चेंज देखो कि साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ, है ना. कॉस साइन में कन्वर्ट हुआ बट 180 माइनस थीटा में 180 माइनस थीटा में साइन साइन रहा, कॉस कॉस रहा, टैन टैन रहा. वंस अगेन 180 प्लस थीटा में भी साइन साइन है, कॉस कॉस है, बट 270 माइनस थीटा में साइन कॉस हो गया, कॉस साइन हो गया, टैन कॉट हो गया. अब इतना ऑब्जर्व करने के बाद 270 प्लस थीटा में भी साइन कॉस हो गया, कॉस साइन हो गया. मुझे बताओ तुमने देखा अभी तक कि दो चीजें हैं यहाँ पर. एक तो ये कि कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है कि साइन कॉस बन जाता है और कॉस साइन बन जाता है. tan converts to cot or cot converts to tan, sec converts to cosec and cosec converts to sec. When does this happen? कब होता है ऐसा? सर ये दिख रहा है कि 90 जब अपने ऑड फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तब ऐसे आ रहा है. If we have an odd multiple of 90 degrees. It's a basic way to remember facts कि भाई 90, 270, 450 जब भी एंगल्स दिखेंगे तुम्हारा साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक कॉसेक में, एंड कॉन्वर्स ऑफ दिस इज आल्सो ट्रू. तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 अगर होते हैं तो ऐसा होता है. But the trigonometric ratio, I mean, sine remains sine, cos remains cos, and so on too. This may also happen if we have an even multiple of 90 degrees. Even multiple like 180, 360, 0. If we have an even multiple of 90 degrees, trigonometric ratios will remain same. T remains T. There is no change. And this is one very good observation because उसके बाद तुम्हें कुछ रटने की जरूरत नहीं है. हमसे अगर पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल हमसे अगर पूछा गया कि भाई व्हाट इज tan 540 माइनस थीटा, हालांकि हमने ये फॉर्मूला मेंशन नहीं किया बट बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन 540 is 90 into 6. It's an even multiple of 90.
एंड सिंस इट इज एन इवन मल्टीपल ऑफ 90, आंसर में यहाँ पर tan आएगा, ये तो कंफर्म है। tan 540 माइनस थीटा का जो भी आंसर होगा वो tan में रहेगा। The only problem is that we are missing sin. ये sin हमको अभी -tan थीटा। -tan थीटा। करेक्ट। तो अब यहाँ पे माइनस आने वाला है। सर आप म्यूट हो। सर ऑडियो नहीं आ रहा। सर आप म्यूट हो गए। सर ऑडियो आवाज नहीं आ रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा सर। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 540 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, कंसीडरिंग थीटा इज एक्यूट। थीटा को तुम एक्यूट अज्यूम कर सकते हो। दिस वन रोटेशन इज 360, वन मोर 360 plus 90 is and 450 plus 90 is 540. So यहाँ तक हम 540 पहुंच गए। एंड कंसीडरिंग थीटा इज एक्यूट, माइनस कुछ हुआ है तो वापस चले गए माइनस थीटा, देखो वापस आके प्रॉपर यहाँ पर। और अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम कहाँ पर हो, तुम सेकंड क्वाड्रेंट में हो। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो आंसर माइनस tan थीटा है ना। तो ये दो चीजें अगर तुम ध्यान रखोगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में ऐसा होने वाला है, ये एक्सचेंज होने वाला है, sin cos cos sin, tan cos cos tan, sec cos sec cos sec sec. And if you have even multiple of 90, t remains t, trigonometric ratio is not changing, and to find sin, use sin convention. सर उसको 3 पाई माइनस थीटा से भी कर सकते हैं ना। ये कुछ खास फायदा नहीं है अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो, तो हम लोग का कुछ एग्जांपल करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जहां पर अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज होगा। तो चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ, सर फाइंड वैल्यूज ऑफ, हेलो पहला है हेलो सर। let's find the value of sin। सर सर आपको हमारी ऑडियो आ रही है? आवाज आ रही है। चलो मैं लिस्ट या बना रहा हूँ। सर 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 को आवाज नहीं आ रही। ट्रेस करो 7 pi by 4 cot चैट में लिखो। माइनस क्या इशू है बच्चे? 3 by चैट नहीं पढ़ सकते। सर को आवाज नहीं आ रही हमारी। कोई दिक्कत नहीं, कुछ सुनो ना। प्रैक्टिस करेंगे आज इस तरह सर होमवर्क पूछेंगे भी अभी, मिलेगी कुछ वेट करो। हम लोग को मिस्टेक्स हमारी मिनिमाइज हो जाएगी। बट अभी तुम ट्राई करो जो कहां तक सही कर पाते हो। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड्स क्लियर नहीं है। sec एक मिनट cosec माइनस cosec। हेलो हेलो अरे हाँ सर। बोल रहा सर वो 540 माइनस थीटा जो है उसको हाँ, सर। 90 के टर्म्स की जगह 3 पाई माइनस थीटा लेके कर सकते हैं क्या? 3 पाई कैसे हो गया, मतलब क्या करो, अच्छा तुम 3 पाई माइनस तेरा करो, ठीक है वो भी चलेगा, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। 3 राउंड्स करके फिर भी सेकंड क्वाड्रेंट तक ही आएगा ना। करेक्ट। सर मुझे सेकंड नहीं समझा वो साइन कन्वेंशन वाला। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट ये वाला। अच्छा नहीं मैं कह रहा हूँ कि देखो हमने अभी ये पढ़ा कि tan ऑफ एन एलाइड एंगल tan में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये वाला जो एंगल यहाँ लिखा हुआ है वो इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो। सो इवन मल्टीपल ऑफ 90 मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे उसने बोला 180 का मल्टीपल। देखो ना 540 इज 90 into 6, तो ये बात समझ में, तुम्हें फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि यहाँ पे tan थीटा आएगा। हाँ सर। बट अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ये प्लस tan थीटा भी हो सकता है और माइनस tan थीटा भी हो सकता है। सो टू डिसाइड कि ये माइनस आने वाला है प्लस आने वाला है, वही पुराना साइन कन्वेंशन हमको यूज करना है।
अब साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि एंगल जिस क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन डिसाइड करते हैं. So let's go for 540 minus theta, assuming theta is acute. तो 540 देखो मैं तुम्हें दिखाया कि वन कंप्लीट रोटेशन 360 प्लस 180 यहाँ पहुंच गए, बट माइनस थीटा होने की वजह से हम वापस आ गए और सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया. दैट्स इट. ठीक है. समझा. तो एंगल को तुम्हें लोकेट करना पड़ेगा इन द क्वाड्रेंट, और लोकेट करने के बाद तुम साइन बता सकते हो कि प्लस है या माइनस. हाँ. cosec -330. सर थर्ड क्वेश्चन में वो tan 7 पाई है ना? 7 pi by 4. Yes, 7 pi by 4. Then सर ये सब tan. स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना ग्रुप पे? हाँ, पूरे नोट्स आते ही है ना ग्रुप पे, नोट्स आएंगे. tan 11 pi by 4. चलो यार, बहुत हो गया. सर फर्स्ट का आंसर 1/2 है क्या? करेक्ट. दूसरे का माइनस सेकंड का माइनस ठीक है. अभी तो लोग पूरा सॉल्व करो, फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे. ठीक, तो अब आराम सॉल्व कर लो. ओके ओके. सर आपने थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है? 7 pi by 4 बेटा, ये 7 pi by 4 है बेटा. It is tan 7 pi by 4. कुछ एंगल्स मैंने पर्पसली रेडियंस में रखे हैं जिससे तुम लोग यूज्ड टू हो जाओ रेडियंस के साथ भी. हमेशा क्वेश्चन में डिग्रीज नहीं होगा. सर 8 to 1 के cos cosec 13 8th करो ना. cosec 13 pi by 6. मैं ये फिजिक्स में तो हो चुका है ना ये शायद, तो फिजिक्स में हो चुका है तो आई डोंट थिंक बहुत टाइम लगने वाला है, सब लोग कर लेंगे ऑलरेडी. सर पांचवी का 0 है क्या आंसर? किसी भी चीज का सेक जो है ना वो 0 हो ही नहीं सकता बेटा, तो देख ले कुछ मिस्टेक. सर इनफिनाइट आ रहा है. Not don't say infinity. Not defined. Not defined. Say not defined. Infinity is just a small part of being not defined. You know. So sec 810 degrees. Not defined सही है. चलो, तो आई थिंक सभी ने अटेंड कर लिया सारे. नहीं सर. फाइन फाइन, आई विल गिव यू 2 minutes मोर. चलो आराम से करो. मैं फिर कह रहा हूं अपने 2 पॉइंट्स ध्यान रखना. पहला, इफ यू आर यूजिंग एन अलाइड एंगल फॉर्मूला, 90 डिग्रीज का कौन सा मल्टीपल है, इवन या ऑड, उस पर डिपेंड करेगा कि साइन कॉस में कन्वर्ट होगा या फिर साइन साइन रहेगा. और दूसरी बात, लोकेट दिस एंगल इन द क्वाड्रेंट. अगर वो एंगल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेट हो गया तो तुम्हें साइन कन्वेंशन से प्लस माइनस का भी आइडिया लग जाएगा और आंसर अपने आप आ जाएगा. Done? अभी टाइम है? ओके.
चलो भी स्टार्ट करते हैं, पहले आंसर्स वेरीफाई करते हैं, ठीक है, फिर हम मेथड्स देखेंगे जहां पे डाउट्स होंगे। सो sin 150 is half 1/2. 1/2, all right. Cos 225 degrees is 1/√2. -1/√2. माइनस आने वाला, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट तो माइनस तो आएगा ही आएगा। 180 plus 45 cos 180 plus theta is minus cos theta. Okay, tan 7 pi by 4 -1. -1. देखो यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने इसको डिग्रीज में पहले कन्वर्ट किया होगा और फिर आंसर दिया होगा। तो कोशिश ये करो कि तुम रेडियंस में कंफर्टेबल हो जाओ, यूज टू हो जाओ, बिकॉज देखो 7 पाई बाई 4 को इजीली हम लिख सकते हैं 2 पाई, यस, माइनस पाई, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। और अब जैसे बताया गया था 2 पाई इज वन कंप्लीट रोटेशन, तो इट इज सेम एज tan माइनस पाई बाई 4। सर पर मैंने वो डिग्री में कन्वर्ट किया सर। हो गया भाई। आंसर इज माइनस 1। सो आंसर इज, सर मैंने डिग्री में कन्वर्ट करके किया। ठीक है, बट कोशिश करो कि ना करना पड़े, है ना, ऐसा रहेगा तो अच्छा रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो मोस्टली क्वेश्चंस में रेडियंस मिलेंगे, रेडियंस अब मिलने वाले हैं बहुत ज्यादा, तो रेडियंस साथ थोड़ा सा फैमिली हो जाओ। cot minus 3/4, cot minus 3/4 आंसर -1. -1. नो, +1 सर। कोई बात नहीं, अगर प्लस माइनस की मिस्टेक हुई भी है तो देख लो कहां से हुई है। सबसे पहले तो ये माइनस बाहर निकाल लो, बिकॉज हमको पता है कि cot minus theta is minus cot theta, केवल cos उस सेक में पॉजिटिव रहेगा। अब cot 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज पाई माइनस पाई बाई 4, ऐसा लिख सकते हैं। 180 माइनस थीटा, पाई मतलब 180, cot 180, अब देखो 180 इज इवन मल्टीपल, तो कंफर्म है कि cot ही आने वाला है। बट 180 माइनस थीटा का मतलब हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, सो देयर विल बी वन मोर नेगेटिव साइन, एक और नेगेटिव साइन आएंगे, और उसकी वजह से ये +1 हो जाएगा। सो देखो जिसका भी आंसर रॉन्ग आया, आंसर यहाँ पे +1 है। ओके, नेक्स्ट है 810 डिग्रीज। नाउ 810 डिग्रीज बिग एंगल, Not defined. not defined is the correct answer, not defined. Reason is it is 720, which is 2 rotations plus 90, so it is back to sec 90, and sec 90 is not defined. Cosec minus 330, 2 होगा सर। 2/√3. cosec minus 330, once again minus sign comes outside, minus cosec 330, और फिर हम 330 को देखो लिख सकते हैं 360 minus 30, and what is cosec 360 minus theta is same as cosec minus theta, तो देखो इसको लिख दिया हमने cosec minus 30, and then what is minus cosec minus theta, it is minus cosec theta, तो माइनस फिर से देखो बाहर आ गया और ये फिर से पॉजिटिव हो गया, so cosec 30 which is finally 2, so answer is 2। सर लेकिन आपने अभी बोला था ना कि वो जो 360 प्लस थीटा ले रहे हैं उसमें n नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो डायरेक्टली भी तो हो सकता है, डायरेक्टली कर माइनस सकते हो, 360 प्लस राइट राइट, मतलब मैंने माइनस ना निकाला हो तो मैंने माइनस 360 प्लस 30 किया होता तो डायरेक्टली आया था, करेक्ट, वेरी गुड, बेटर मेथड है ना। व्हाट अबाउट 11 पाई बाय 4, tan 11 पाई बाय 4, -1 हाँ डिसाइड कर दो, इट इज 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 4 है ना, देखो ना 3 पाई माइनस पाई बाय 4, वो भी कर सकते हैं, हाँ और वो क्या है 2 पाई प्लस वही पाई बाय 6, 10 पाई बाय 4, भाई जो भी चाहो, 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 4 कर रहे हो तो उसका एडवांटेज ये है कि 2 पाई सीधे से निकल जाएगा, सोचना ही पड़ेगा। इट इज एक्चुअली tan 3 पाई बाय 4, tan 135 डिग्रीज। अब तुम इसको चाहो तो, जो तुमने एक ही स्टेप में कर लिया, हम 2 स्टेप में कर रहे हैं, अब इसको तुम पाई माइनस पाई 4 लिख लो, और tan पाई माइनस तेरा इज माइनस tan थीटा, तो माइनस tan पाई 4, आंसर इज -1, आंसर इज -1। So tan of 11 pi by 4 is -1.
And finally, cosec 13 pi by 6. 2 plus 2. Correct. 2. Cosec Plus 13 pi by 6 is cosec. 2 pi plus pi by 6. Once again, 2 pi is one complete rotation. So this is cosec pi by 6, which is plus 2. Answer is 2. ये हो गया. ठीक है, ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस आज दिए जाएंगे, इनको घर पे बैठ के सॉल्व करना और प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाएगी. ठीक है, ये अलाइड एंगल फॉर्मूले थे और डन है आज का अलाइड एंगल फॉर्मूले. आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्राफ ऑफ trigonometric functions. Instead of ratios मैं यूज कर रहा हूँ word functions, और उसका रीजन है बाद में बताया जाएगा. ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं. ग्राफ तो सभी लोग प्लॉट करना जानते ही हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया ही हुआ है. आजकल तो तुम ग्राफ देख ही रहे हो, अपना कोविड-19 का ग्राफ तुम देख ही रहे हो. कैसा ग्राफ है, क्या बोलते हैं उसको? एक्सपोनेंशियल ग्राफ. Why it is called an exponential graph, पता है? हाँ? बहुत जल्दी इंक्रीज होता है वो. रैपिडली इंक्रीज होता है. Actually, एक्सपोनेंशियल रिलेशन, क्योंकि वो एक्सपोनेंट से बढ़ता है. this type of relation is called an exponential relation. 2 power x. 2 power x का क्या मतलब है? जैसे तुम x को बढ़ाते जाओगे, चीज ये जो वैल्यू है y की वो बहुत सडनली इंक्रीज होगी. फॉर एग्जांपल देखो ना, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो अगर x इक्वल टू 1 है या चलो 0 है तो हम 1 पे हैं. जब x इक्वल्स टू 1 हुआ तो y इक्वल्स टू 2 हो गया, चलो 2 पे आ गए. लेकिन जैसे x इक्वल टू 2 हुआ, अब सडनली इसकी वैल्यू 4, 2 स्क्वायर 4 पे आ गई. x इक्वल टू 3 पे क्या होगा? 8. इसका जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है, इससे ज्यादा रेट ऑफ इंक्रीमेंट, आई मीन ऑब्वियसली 2 पावर एक्स से ज्यादा 3 पावर एक्स हो सकता है, 3 पावर एक्स से ज्यादा 100 पावर एक्स हो सकता है. बेस बढ़ाते जाओ, एक्स रेट ऑफ इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा. बट एज अ फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो सबसे ज्यादा है. यानी इससे तेजी से बाकी फंक्शंस कंपैरेटिवली नहीं बढ़ पाते हैं. इसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट बाकी कई फंक्शन से, मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन से ग्रेटर. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक y इक्वल्स टू x, y इक्वल टू x इज सिंपली अ लाइन. ऐसी लाइन होती है. अब देख सकते हो कि ये लाइन कंप्लीटली इस ग्राफ के नीचे. सो व्हेन वी से COVID-19 इज द ग्राफ ऑफ COVID-19 इज एक्सपोनेंशियल, और x एक्सिस पे हमने रख रखा है टेन्योर, मंथ्स, ड्यूरेशन, और यहाँ हमने रख रखा है पॉपुलेशन इन्फेक्टेड, and we are saying that this graph is exponential. That means we're trying to say in the first month if there were 2 patients, in second month 4, in third month double of this. Every month number of patients are doubling. So this type of graph is called an exponential graph. But ठीक है, अब हमको exponential graph तो देखने नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ. बस मैं बता रहा था कि देखो ग्राफिकल रिलेशंस ऐसे सेट किए जाते हैं. So coming back to trigonometric functions, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू साइन x. y इक्वल्स टू साइन x जो है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं. ये जो फंक्शन है, इट इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x. अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आएंगे, कुछ नए वर्ड्स में भी तुमने ना सुना हो, तो मैं केवल ग्राफ नहीं कुछ और चीजें इसका बताऊंगा. पहला पॉइंट है यहाँ पे डोमेन. किसी ने डोमेन वर्ड सुना है पहले कभी? डोमेन ऑफ द फंक्शन. हाँ सर, सेक्टर. नो, ठीक है. जिन लोगों ने नहीं सुना है ध्यान सुनो. ओके. फॉर अ फंक्शन इज व्हाट? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन x एंड y. व्हाट इज अ फंक्शन? चलो मैं पहले तो फंक्शन बताता हूँ. फंक्शन इज समथिंग जस्ट लाइक साइन इज अ फंक्शन. फंक्शन फॉर एवरी इनपुट, अ फंक्शन gives an output. अभी के लिए इतना जानना काफी है कि एक इनपुट के लिए
जो फंक्शन होगा वो एक पर्टिकुलर आउटपुट देगा। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स जो है, यहाँ पर एक्स को इनपुट बोल सकते हो और जो वाई है वो तुम्हारा आउटपुट। तो व्हेन वी से दैट साइन पाई बाय 6 या साइन 30 degrees is half, pi by 6 is your input for function for sine and half is output। ठीक है ना? तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है और पूरा चैप्टर है, ये तुम्हें पढ़ाया जाएगा। तो अभी के लिए इतना जानना काफी है कि जो इनपुट्स होते हैं, द सेट ऑफ इनपुट्स इज कॉल्ड डोमेन। इन शॉर्ट ये कह लो कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज डोमेन। And what values of x? What values of input? All those values of x for which you get a value of y. Every input for which you get an output. जिन inputs के लिए output नहीं मिल पा रहा है, वो domain का part नहीं है। तो as I mentioned, that sine is defined for every real value. That's why domain of sine is the set of all real numbers. तुम sine के अंदर कुछ भी रख दो, साइन को कोई भी एंगल प्रोवाइड करो, साइन 100 डिग्रीज, साइन 20 डिग्रीज, साइन 1200 डिग्रीज, हमेशा साइन का कोई ना कोई आंसर आएगा। एंड एवरी टाइम यू आर गेटिंग एन आउटपुट, सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर्स। ठीक है? तो इस वर्ड को अभी तो हम बहुत एम्फेसिस मुझे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, बट टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड ऐड कर लो, डोमेन अब तुम्हें पता है। ठीक है? तो व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज, लिख भी देते हैं यहाँ पर, डोमेन का मतलब क्या हुआ? डोमेन का मतलब है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, और एक्स यहाँ पे मेरा मतलब इनपुट है, फॉर विच वाई, और वाई से मेरा यहाँ मतलब आउटपुट है, फॉर विच वाई is defined, is real। ठीक है ना? तो देखो फिर से एक बार, sin x का डोमेन जो है वो r है। r मतलब the set of real numbers, because sin is defined for every real number। सर रियल नंबर्स में तो फिर इरेशनल भी आएंगे। यस यस, तो sin √2 भी होता है, sin पाई देख लो ना, sin पाई की वैल्यू है तुम्हारे पास, पाई तो इरेशनल ही है। साइन पाई क्या मतलब हुआ? साइन 180 is आंसर इज 0। तो साइन इज डिफाइंड फॉर इरैशनल्स, रैशनल, फॉर एवरी रियल नंबर, सबके लिए डिफाइंड है साइन। ठीक है? ओके तो फर्स्ट पॉइंट, द डोमेन, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। साइन का डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। सेकंड पॉइंट है रेंज, और ये फिर भी थोड़ा फैमिलियर है, आई थिंक सभी ने रेंज वर्ड तो सुना है एटलीस्ट। तो रेंज का क्या मतलब होता है? रेंज व्हेन वी आर लुकिंग एट अ फंक्शन, व्हाट इज रेंज ऑफ फंक्शन? व्हाट डू यू थिंक? उसकी वैल्यूज कहां से कहां के बीच में रेंज सबसे करेंगे? छोटा वैल्यू से लेकर सबसे बड़ा वैल्यू, ये एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच में जो भी लाई करता है। नॉट माइनस, यू करेक्टली सेड, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मतलब रेंज का जो नॉर्मल सेंस है किसी भी चीज के लिए, कि भाई मेरी मिसाइल, इंडिया की अपनी मिसाइल है ब्रह्मास्त्र, उसकी जो रेंज है वो है 100 किलोमीटर्स। इसका मतलब -100 से +100 तक, मतलब माइनस में इसलिए डायरेक्शन के बोल रहा हूँ कि अपना जो है, या 0 to 100 किलोमीटर्स तक उसकी रेंज है। मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर कर सकती है वो 100 है, और मिनिमम जो है वो 0 है, यही लास्ट हो गई। तो साइन एक्स के लिए भी अगर हम बात करें रेंज की, तो इस वक्त हम जैसे डोमेन की बात की थी, डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एनी इनपुट्स, रेंज इज द range is the set of values of y, y मतलब output, for the corresponding values of x, that is input। तो देखो मैं फिर से करूं, बहुत सिंपल सी बात है। डोमेन is a technical word, technical term for inputs, यानी कि x, y equal to sin x में x की जो permissible values हैं, जो acceptable values हैं, उनका जो set होगा, that is domain, inputs। और वो inputs डालने के बाद, sin थीटा में थीटा डालने के बाद जो output आता है, for example sin 30 is half, output is half, sin 60 is √3/2, output is √3/2,
Sine 90 degrees is 1. Output is 1. So these output, you collect all the outputs. सारे outputs को collect कर लो. And the collection of these outputs, the set of these outputs is called range. So coming back to our function, what is the range of sin x? What is the range of, yes. 1 and minus 1 to minus. तो इन शॉर्ट हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई sin x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी. What is the minimum value of sin x? What is the maximum value of sin x? -1 to 1. It is -1 to 1. अब कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा कि माइनस कहाँ से आ गया, बट अभी हमने देखा है, अभी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड देखो उसमें कुछ आंसर्स नेगेटिव आए हैं. तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. तो इन शॉर्ट जो रेंज है इसकी, जो रेंज है उसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि y क्या ठोक रहा है भाई. So y is less than or equal to 1 and greater than or equal to -1. है कि नहीं. जो sin x की रेंज है वो -1 से 1 के बीच में. यानी कि अगर किसी ने बोला कि बताओ मुझे वो कौन सा एंगल है जिसके लिए sin x 2 है. Find that angle for which sin x is 2. What is your answer? It does not exist. Don't exist. Doesn't exist. There is no real value. There is no real angle for which sin x is 2. Sin x 2 नहीं हो सकता. But आगे बढ़ेंगे और sin x equal to 2 का भी आंसर निकालेंगे कभी ना कभी. sin x equal to 2 का आंसर तो है. sin x equals to 2 के लिए भी आंसर है और वो आंसर जो है वो है एक imaginary angle. It cannot be real obviously because sin x cannot exceed 1. Why sin x cannot exceed 1? चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. तो sin x की जो डेफिनेशन है, it says opposite upon hypotenuse. Clearly hypotenuse कभी भी किसी भी साइड से राइट एंगल ट्रायंगल में छोटा नहीं हो सकता. So magnitude of sin x should be always less than or equal to 1. Equality क्यों आ सकती है? Because theoretically अगर कोई एंगल 90 डिग्रीज पे बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल थियोरेटिकली आ गया, तो उस केस में sin 90 1 हो सकता है. अदरवाइज ये हमेशा 1 से छोटा ही होगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ sin x is always less than 1 and that's why sin x lies between -1 to 1. What I was saying, I was talking about imaginary numbers. Imaginary angles हो सकते हैं जिनके लिए sin की वैल्यू 2 हो सकती है, बट ये तो बहुत दिनों बाद आने वाला है, अभी कुछ आसपास नहीं है. तो अभी फिलहाल ये समझो कि उसकी रेंज -1 to 1 है. ठीक है. अब चलो हम लोग इसका एक बार ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो तीसरे पॉइंट पे हम ग्राफ पे आते हैं. ग्राफ ऑफ sin x. तो ग्राफ प्लॉट करने का जो मेथड तुमने बचपन में सीखा था, आई मीन 10th या 9th में तुमने किया होगा, एग्जैक्टली वही काम अभी करना है तुमको. कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं? ऑब्वियसली अगर हमको y इक्वल टू sin x ग्राफ प्लॉट करना है तो हम कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे. y इक्वल टू sin x है तो हम यहाँ पर एक हमने जैसे स्ट्रेट लाइन प्लॉट की थी 10th में, हम कुछ x की वैल्यूज रखेंगे और कुछ y की वैल्यूज रखेंगे और उन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को प्लॉट करके ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा. चलो sin x का ये ग्राफ प्लॉट करते हैं और ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत वैल्यूज लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने x को ले लिया 0, तो हमको पता है कि sin 0 is 0, y कोऑर्डिनेट 0 होगा. What if x is pi by 6? देखो मैं यहाँ पर जब ग्राफ प्लॉट करूंगा तो जो एंगल्स होंगे वो रेडियंस में होंगे. बात ध्यान रखना, एंगल्स रेडियंस में इसलिए होंगे बिकॉज रेडियंस ही एक्चुअल एंगल है, रेडियंस ही एक्चुअल वैल्यू है. डिग्री इज जस्ट अ कन्वेंशन. रेडियंस ही एक्चुअल यूनिट है एंगल्स की, क्योंकि पाई बाय 6 के आगे तुम्हें कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है. पाई बाय 6 इज जस्ट अ रेशियो. तो ध्यान रखना जब तुम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो एक्स एक्सिस पर मेंशन एंगल्स इन रेडियंस. व्हाट इज y? if x is 1 by 2. 1 by 2. pi by 2 1 and pi 0. चलो 2 pi का कुछ और एंगल्स रहते हैं. What is 3 pi by 2? -1.
3 pi by 2 is -1. -1. 270 degrees is -1. And finally, tell me what is 2 pi? 0. Purposely मैंने 0 से 2 pi के बीच की वैल्यूज ली। आओ देखते हैं, देखो 0 से 2 pi। चलो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? 0,0। तो जो भी ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होने वाला है। दूसरा पॉइंट है पाई बाय 6, हाफ। चलो पहले हम प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर एक रेफरेंस के लिए। यहाँ पे है +1 और यहाँ पर है हमारा -1, ये -1। अब ये बताओ मुझे कि पाई बाय 6 कैसे प्लॉट करें? ऑब्वियसली हम एग्जैक्टली तो प्लॉट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तुम अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी रख रहे हो, इधर ना कि स्केलिंग राउंड नहीं होनी चाहिए। स्केलिंग का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि पाई बाय 6 यहाँ डाल दिया। भाई पाई बाय 6 को तुम अप्रोक्सीमेटली तो कैलकुलेट कर सकते हो ना। व्हाट इज पाई बाय 6? पाई बाय 6 का मतलब हुआ 3.14 डिवाइडेड बाय 6, अप्रोक्सीमेटली 0.5 के आसपास आ रहा है। सो पाई बाय 6 जो भी है, अगर तुम इसको 1 अज्यूम करते हो, अगर ये तुम्हारे लिए 1 यूनिट है, तो पाई बाय 6 जो भी है वो हाफ से थोड़ा सा बड़ा है। दिस इज पाई बाय 6, है ना। तो ये स्केलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? हाफ। साइन पाई बाय 6 इज हाफ। सो योर सेकंड पॉइंट इज हियर। ये पॉइंट यहाँ पे, दिस इज साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 इज हाफ। पाई बाय 6, हाफ। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमको पता है? नेक्स्ट पॉइंट हम लिया है पाई बाय 2। वंस अगेन पाई बाय 2 को अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करो। व्हाट इज पाई बाय 2? पाई बाय 2 is 3.14/2, 1.57, करेक्ट। सो 1 से बड़ा है, 1.5 के आसपास, उससे बड़ा ये यहाँ पे कहीं होगा पाई बाय 2। और पाई बाय 2 पे देखो उसकी वैल्यू 1 आती है। दिस इज साइन पाई बाय 2 विच इज 1। तो ओरिजिन एक पॉइंट हो गया, पाई बाय 6 एक पॉइंट हो गया, पाई बाय 2 एक पॉइंट हो गया। यू कैन सी दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर बिकॉज स्ट्रेट लाइन तो आ ही नहीं सकती थी। इनको अगर हम एक कर्व से ज्वाइन करने की कोशिश करें, ये देखो कर्व कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, है ना। ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका पाई बाय 2 तक। पाई बाय 2 के बाद मैंने जो पॉइंट लिया है वो है पाई। व्हाट इज पाई? पाई इज डबल ऑफ पाई बाय 2, यानी 1.57 का डबल, 3.14। मान लो पाई यहाँ पर है, दिस इज पाई। मान लेते हैं पाई यहाँ पर है। सो पाई पर इसकी वैल्यू क्या है? पाई पर इसकी वैल्यू 0 है। सो पाई, 0, जॉइन दिस। सिमिलरली 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 अगर लोगे तो देखो 3 पाई बाय 2 यहाँ पे कहीं हो गया मान लो, और 3 पाई बाय 2 पर उसकी वैल्यू है -1। ये कुछ पॉइंट आ गया, हम यहाँ पहुंच गए। ये रहा 3 पाई बाय 2। और तुम्हें आगे दिख रहा होगा कि इसके आगे ग्राफ जाएगा और 2 पाई पर इसकी वैल्यू वापस 0 हो जाएगी। तो इन शॉर्ट ग्राफ कुछ देखो ऐसा बन रहा है। इसको थोड़ा सा ग्राफ छोटा कर देते हैं, कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। दिस टाइप ऑफ ग्राफ वेयर दिस इज 0 एंड दिस इज 2 पाई। पाई बाय 2 को ले लो ना 1 यूनिट। क्या करो? पाई बाय 2 को 1 यूनिट ले लो ना। क्या एडवांटेज होगा उसका? सर उससे इजी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, फिर हम लोग का पाई बाय 2 पाई 2 पाई सब ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ना ठीक है। हां सर, उसके मल्टीपल्स में आ जाएगा। एक रीजन है कि हमने इसको 0 से 2 पाई तक ही बनाया, पता क्यों? क्योंकि 360 डिग्रीज के बाद तुम्हें पता है कि जो भी एंगल्स आएंगे उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू सेम होती है। सो व्हाट इज साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 6? साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 6 इज सेम एज साइन पाई बाय 6। इसका मतलब ये ग्राफ जो है ना वो रिपीट होने वाला है। दिस ग्राफ विल रिपीट इटसेल्फ। दिस ग्राफ विल रिपीट इटसेल्फ। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये चीज आगे चल के रिपीट होगी और पीछे भी ये ग्राफ रिपीट होने वाला है। तो ये हमारी साइनोसोइडल वेव है, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। और अगर तुम इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो जैसा मैंने कहा था, इफ यू लुक एट एक्स एक्सिस, द ग्राफ इज कंप्लीटली स्ट्रेच्ड ओवर एंटायर एक्स एक्सिस। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स की तुम कोई भी वैल्यू रखो तुम्हें वाई की वैल्यू मिलेगी। एंड दैट्स व्हाई वी सेड domain of this function is all real numbers. But if you look at range क्या है इसकी? तो अगर तुम रेंज देखोगे, ये देखो y एक्सिस पर जो वैल्यूज कवर हो रही हैं, this graph doesn't go beyond +1,
+1 के ऊपर नहीं जाता, एंड दिस ग्राफ डजंट गो बिलो -1, -1 के नीचे नहीं आता। तो जो ग्राफ है वो -1 से 1 के बीच में ही रहता है हमेशा, एंड दैट्स व्हाई रेंज ऑफ दिस फंक्शन y की जो वैल्यूज है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या क्या डाउट्स है, है क्या? नो, यस। सो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जहां पे हमने पॉइंट स्टार्ट किया है, व्हाट आर योर डाउट्स, बिकॉज दिस इज ऑब्वियसली समथिंग न्यू फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। कुछ लोगों ने शायद रिपीट कर रहे हैं, उनको बोरिंग लग रहा होगा, बट एनीवेज हमको अभी सबको लेके चलना है, इसलिए जो भी तुम्हारे डाउट्स हो वो क्लियर करो। मैंने y = sin x का ग्राफ, मैं ग्राफ बनाने जा रहा था, मैंने सबसे पहले मेंशन किया डोमेन। डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इनपुट्स, यानी कि x की वो वैल्यूज जिनके लिए साइन डिफाइंड है, जिनका साइन होता है, और हमको पता चला कि सभी एंगल्स के लिए साइन होता है, एंड दैट्स व्हाई domain of sin x is set of all real numbers. Second point जो मैंने मेंशन किया वो थी रेंज। What is range of sin x? तो range of sin x is the set of outputs, यानी एंगल देने के बाद sin 30 half, sin -30 -half, sin 90 1, sin -90 -1, जो आउटपुट आ रहे हैं उनका जो कलेक्शन होगा वो रेंज है। और हमने देखा कि रेंज ऑफ sin x is between -1 to 1, -1 से 1 के बीच में होगा। लॉजिक इसका ये है कि sin x की जो डेफिनेशन है that says it is opposite side या any side upon hypotenuse. Hypotenuse is the largest side in right angle triangle, so obviously जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। And then we try to plot this graph. ग्राफ प्लॉट किया हमने, और ग्राफ प्लॉट करने का वही बेसिक मेथड, x एक्सिस पर कुछ पॉइंट्स हमने प्लॉट किए और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकाली, और उसके बाद उनको ज्वाइन किया यूजिंग दिस कर्व, तो कुछ ऐसा साइनोसॉइडल स्ट्रक्चर है। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सर वो जो अलाइड एंगल फॉर्मूला है ना, हाँ, उसको लाइक हम लोग अगर यूज टू होना तो बस प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, और तो कुछ बिल्कुल प्रैक्टिस कर लो और यूज टू हो जाओगे। अभी तो पता है ट्रिग्नोमेट्री में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? ट्रिग्नोमेट्री में हमें मोर देन 400 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। 400। तुम्हें क्या लगता है यूज टू नहीं होगे? अगर नहीं हो रहे तो 400 और देता हूँ। ओके, अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स कम लग रही हो तो मैं हमेशा और दे सकता हूँ। नहीं सर, मेरे को ग्राफ समझा, बट जो अलाइड का था ना, मतलब उसका मतलब कुछ समझा, कुछ नहीं समझा वैसा। नहीं समझा वाली क्या बात है? मतलब मुझे बताओ, वो याद नहीं कर पा रहे हो अलग बात। नहीं समझा, हाँ वही, मतलब याद नहीं वाला, एक सॉल्व करते याद हो जाएगा। वो क्वेश्चन सॉल्व करते वो चीज याद हो जाएगी। और याद करने से अच्छा ना, मैंने जो तुम्हें ऑब्जर्वेशन दिया लास्ट के 2 पॉइंट्स, वो चीज अगर तुम ध्यान रखो तो रटने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, कि साइन कॉस में कन्वर्ट होगा या फिर साइन साइन रहेगा, कब वो कॉस में कन्वर्ट होगा। और साइन में गड़बड़ हुई तो प्लस माइनस में नहीं भाई, दोनों थोड़े यूज कर सकते हो। आंसर तो एक ही आएगा ना, प्लस माइनस ही लगा सकते हो। माइनस की जगह प्लस लिख दिया, आंसर गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन भी प्रॉपर होना चाहिए। साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, चिंता मत करो। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है दोस्त, अभी तो शुरुआत की, अभी तो बस स्टार्टिंग है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये चैप्टर इनिशियली थोड़ा सा लगेगा, अभी तुम्हें फॉर्मूले बहुत सारे आएंगे, बट जैसे ये जहां पे चैप्टर फिनिश होगा ना, उसके बाद देयर विल बी अ यू नो साई ऑफ रिलीफ एंड ब्रीज ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं बहुत हल्के फुल्के हैं। फर्स्ट चैप्टर इसको रखने का पर्पस भी यही है कि तुम्हें समझ में आए कि तुम क्या पढ़ने जा रहे हो, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, यस, बट जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उसमें इतने फॉर्मूले नहीं है। उसमें अलजेब्रा बहुत सिंपल है, उसमें क्वेश्चंस भी कंपैरेटिवली सिंपल। लेकिन एक बार इस चैप्टर से हम ढंग से गो थ्रू हो लें तब तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फिर टीएनसी भी थोड़ा इससे इजी है क्या? नहीं, आगे आने वाले मतलब बात करता क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज। टीएनसी तो ऐसा है कि टीएनसी पढ़ने के बाद लोग एग्जाम में छोड़ देते हैं। मेरा फेवरेट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग ही पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, उसको वॉलंटरली छोड़ देते हैं, क्योंकि फैक्ट है कि उसका एक ही क्वेश्चन आने वाला है। आउट ऑफ 25 अगर एक क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पीएनसी की बातें चलो बाद में करेंगे, वो तो खैर अलग चीज है। चलो भाई, तो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया और हमने तीसरा पॉइंट ग्राफ लिखा था। फोर्थ में एक और चीज तुम्हें बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। दिस इज
फंडामेंटल पीरियड. पीरियड जो वर्ड है वो तुमने सुना है ना. पीरियोडिक होने का मतलब तुम्हें समझ में आता है, समथिंग विच रिपीट्स इटसेल्फ. नाउ इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, तुम देख सकते हो कि ये ग्राफ रिपीट हो रहा है. ये ग्राफ रिपीट हो रहा है. एंड इफ यू लुक एट द ग्राफ फ्रॉम 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच का जो ग्राफ है, मैंने कहा ना ये ग्राफ रिपीट होने वाला है. रीजन, आफ्टर वन रोटेशन, आफ्टर 2 पाई, आफ्टर 360 degrees, the graph has, the function has to repeat itself. The values will be repeated. So what is fundamental period? It is the smallest duration, smallest positive duration after which the graph of a function repeats itself. So fundamental period for sine is 2 pi or 360 degrees. मैं फिर कह रहा हूँ, मैं लिख लेता हूँ. What is fundamental period? Smallest positive duration, interval लिख लो, positive interval after which graph repeats. And for sine it is 2. ठीक है. मैं एडिसाइज क्यों लिखवा रहा हूँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ. केवल ग्राफ, बुक्स में क्या होता है, केवल ग्राफ बने होते हैं. केवल ग्राफ बने होते हैं तो ठीक है, ग्राफ हमने देख लिया, याद कर लिया, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए. बट अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है. तो एक बार ये खत्म हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये सब क्यों लिखा है हमने. नेक्स्ट एक और पॉइंट है और इसका प्रूफ सर बाद में लिखने के लिए थोड़ा टाइम देना. फंडामेंटल पीरियड. अच्छा, अभी तुम्हें लिखना है. अरे मैं तुम्हें नोट शेयर कर दूंगा ना, तुम्हें समझ में आएगी ये बात कि पीरियड क्या होता है. व्हाट इज पीरियड. एक टाइम के बाद रिपीट होने लग जाता है. हाँ तो देखो ना, ये ग्राफ जैसे मैंने बनाया था, ये ग्राफ 2 पाई इंटरवल के बाद 0 पाई 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट हो गया. दैट्स इट. बस एक टर्म है फंडामेंटल पीरियड, इसको बोलते हैं. व्हाई दिस वर्ड फंडामेंटल इज एडेड? बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल. क्योंकि एक्चुअली ये 2 पाई नहीं, ये 4 पाई के बाद भी तो रिपीट होगा. तो हर ग्राफ के लिए होता है फंडामेंटल पीरियड? नहीं, जो पीरियोडिक फंक्शंस है केवल उन्हीं के लिए होता है. ओनली फॉर पीरियोडिक फंक्शंस. सर इनवर्स के लिए नहीं है ना ये? इनवर्स ऑफ लाइक ऐसा नहीं बोल सकते कि पाई तक जो ग्राफ है फिर उसी का इनवर्स होता है, फिर उसका वापस इनवर्स होता है, फिर उसका वापस. नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई. अभी मैंने दिखाया ना तुम्हें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर एक स्ट्रेट लाइन, ये सब पीरियोडिक नहीं है. ये क्या है, ये कभी रिपीट नहीं होते हैं, ये तो बस इंक्रीज करते चले जाते हैं. यही ग्राफ है जो देखो रिपीट हो सकते हैं. ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पीरियोडिक है. और उसका रीजन क्या है कि 360 डिग्रीज के बाद सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को वैल्यू को रिपीट करना है. तो इसलिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ हैं वो पीरियोडिक है. उनका नेचर पीरियोडिक है, वो रिपीट होते हैं. और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक फंडामेंटल पीरियड होता है, द स्मॉलेस्ट इंटरवल, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल आफ्टर व्हिच द ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ. ठीक है. लास्ट पॉइंट है इसका, ग्राफ में ही लास्ट पॉइंट है, और वो ये है, इफ यू लुक एट दिस ग्राफ 0 to पाई तक मैं बनाया केवल, तो पीछे भी उसको एक्सटेंड कर लेते हैं. देखो ऑनलाइन में थोड़ा सा मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो लोग फर्स्ट टाइम ये चीजें देख रहे हैं, तो थोड़ा आज बैठ के पढ़ना पड़ेगा, है ना. थोड़ा सा तुम्हें स्टडी करनी पड़ेगी, अपनी एसएलओ निकालना और उसमें देखना ग्राफ बने हुए हैं. तो ग्राफ एक बार उठा के देखना. सर मैं 2 बुक रेफर कर रहा हूँ इसके लिए. अच्छा, तुम्हें जितनी भी बुक्स चाहिए मुझे बता दो, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा. ठीक है सर. एसएलओ के अलावा मेरे पास केवल ट्रिग्नोमेट्री के लिए 5-6 बुक्स. तो तुम्हें जितनी बुक्स चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है सर, थैंक यू. बट ये है कि वो, हाँ, वो होनी चाहिए ना, सॉल्व होनी चाहिए. ओके, तो द थर्ड इंफॉर्मेशन इज कि भाई तुमने ऑब्वियसली टेंजेंट्स के बारे में सुना है. अगर हम इस साइन एक्स के ग्राफ पे, ये साइन एक्स का ही ग्राफ है, अगर इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें ओरिजिन पे, टेंजेंट, you know what is a tangent? Line which touches the graph. It is a limiting case of a secant. The tangent to y equal to sine x will be this line, y equals to x at origin. Tangent to
y equals to sin x at origin is y equals to x. Now if you want I can prove it also. अगर तुमने फिजिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ा हो, यस फिजिक्स में चल रहा है ना डिफरेंशिएशन पढ़ाते हुए फिजिक्स बताया गया होगा कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है. I mean what dy by slope of the graph या slope of the tangent at this point, है ना. तो देखो अगर मुझे ये y इक्वल टू x लाइन दिखानी है कि टेंजेंट है, क्या तुमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी है 10th स्टैंडर्ड में? y is equal to mx plus c. सर mx plus c. y1 is तो तुम equal देख to रहे हो mx कि y इक्वल्स टू x का स्लोप क्या है? इट इज 1, है ना. यस सर. एंड टू चेक, टू वेरीफाई, चलो वेरीफाई करते हैं. What is derivative of sin x? What is dy by dx? It is cos x. Yes. And at x equal to 0. At x equal to 0, what will be this dy by dx? It will be cos 0, which is 1. So that's why y equals to x, because y equals to x is a line which is passing through origin, having slope 1, should be a tangent to y equals to sin x. And again, this information is crucial. ये information बहुत important हो सकती है. डाउट सॉल्विंग कर रहे हैं. Sorry? डाउट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. कर रहे हैं, डाउट सॉल्विंग कर रहे हैं. किससे बात कर रहा है? मुझसे किसी और से? अच्छा घर पे बात कर रहा है. ओके तो देखो ये 5 पॉइंट्स थे. अब मुझे बताओ कि इस देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये बात ना समझ में आई हो, ये तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि फिजिक्स में तुमने डेरिवेटिव पढ़े हुए हैं. इन केस तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, इस चीज को रट लो अभी के लिए कि साइन एक्स की जो टेंजेंट है एट ओरिजिन वो y इक्वल्स टू x लाइन. ठीक है, इतना याद कर लो, इतना काफी है. ठीक, अब चलो हम लोग ये देखते हैं कि ये मैंने ग्राफ में बनवाया क्यों. अब देखो पूरा तो मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है. तुमने अगर स्क्रीनशॉट या खुद बनाया होगा, एटलीस्ट ये ग्राफ अपने पास रखना. ठीक है, ग्राफ तुम्हारे पास होना चाहिए. तो ज्यादा नहीं है, बस मैं एक क्वेश्चन और तुम्हें देता हूँ, तो मुझे उसका सोल्यूशन दो. ठीक है, क्वेश्चन ये है, जैसे हम लोग केबीसी में स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है ना कि भाई सभी लोग अरेंज करेंगे, अरेंज दीज वैल्यूज इन increasing order of their whatever the value is. ठीक है, arrange these values in increasing order. That's it. और देखते हैं सबसे पहले कौन कर दिखाता है आज. तो जो वैल्यूज हैं वो हैं sin 1, sin 2, sin 3, sin 4, sin 5 and sin 6. अगर कोई पूछने जा रहा हो कि डिग्रीज है कि रेडियंस, तो देखो जब तक हमने डिग्रीज नहीं बोला, जब तक हमने डिग्रीज मेंशन नहीं किया, ये सारी वैल्यूज रेडियंस में है. ये सभी वैल्यूज रेडियंस में हैं, ध्यान रखना. ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इन सभी वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, नॉट जस्ट मैग्नीट्यूड, विद साइन ऑल्सो. इस क्वेश्चन में हेल्प भी मिलेगी, तुम्हें थोड़ा सा रेडियंस में आने का मौका मिलेगा और सोचने का मौका मिलेगा कि भाई रेडियंस में और डिग्रीज में क्या डिफरेंस है. अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ग्राफ को रिफर करो, बहुत हेल्प मिलेगी. ग्राफिकल एनालिसिस इज अ मस्ट. ग्राफ केवल बनाना नहीं आना चाहिए, ग्राफ की हेल्प से कई क्वेश्चंस केवल ग्राफ की हेल्प सॉल्व हो जाते हैं. तो sin 2 हाईएस्ट है क्या? sin 2 हाईएस्ट है इन सभी वैल्यूज में. अच्छा, तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है. कैसे बताओ, ये रीजन क्या है तुम्हारा? रीजन बताओ, तुम्हें क्यों लगा कि sin 2 हाईएस्ट है? बताओ बच्चे. सर sin 2 इज इक्वल टू sin पाई माइनस 2 तो हम लिख ही सकते हैं ना.
हाँ लिख सकते हैं। हाँ, तो वो हो गया साइन 1.4। साइन 1.4 हो गया, ठीक है। फिर साइन 3 को भी वैसे ही साइन पाई माइनस 3 तो 0.14। तो फिर ऐसे घट रहा है, मतलब जैसे जैसे साइन वो हो रहा है ना, बढ़ रहा है ना, ऐसे वैसे साइन का वैल्यू कम हो रहा है। करेक्ट, तो इसलिए क्या बात है, साइन वेरी टू गुड, हाईएस्ट है। वेरी गुड। चलो भाई उसको बताइए साइन टू हाईएस्ट है। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि साइन टू हाईएस्ट क्यों है, बस बाकी लोग भी अपना ट्राई करते रहो। बताओ मुझे लीस्ट वैल्यू कौन सी है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इसके लिए ग्राफ की हेल्प लो। ग्राफ की हेल्प कैसे लोगे? साइन 5 लोएस्ट। साइन 5 साइन 5 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू सेइंग ना। अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी, वो भी देख लेते हैं। सो ग्राफ की हेल्प तुम कैसे लोगे? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ग्राफ की हेल्प तुम कैसे लोगे। सबसे पहले तुम देखो साइन 1 रेडियन, तो एक्स एक्सिस पे 1 प्लॉट करो। देखो ये मैंने इसको π/2 माना है, दिस वैल्यू इज π/2। तो 1 कहाँ पे होगा? 1 ऑब्वियसली इसके पहले होगा, 1 कहीं यहाँ पे होगा, है कि नहीं? 1 π/2 के पहले ही तो होगा, बिकॉज π/2 की वैल्यू क्या है? 1.57, तो 1 इसके पहले होगा। एंड व्हाट अबाउट 2? 2 जो है वो π/2 के बाद होगा, ऑब्वियसली 2 जो है वो π/2 के बाद है। एंड व्हाट अबाउट 3? 3 जो है वो पाई के जस्ट पहले होगा। 3 is just immediately before pi because pi is approximately 3.14, तो जस्ट पहले होगा। अच्छा ये देखो ये -1 वैल्यू किस पे आती है?